سر ٹائم کیا ہے؟ واٹ از ٹائم؟ کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے کہ بس ایک پل ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ٹائم میں جینا نہیں ہوتا، ٹائم میں آپ سب مرتے ہیں۔ آپ مرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ میرے بارے میں تراشی گئی ایک سٹوری، جب میں کہتا ہوں کہ آپ مٹو گے تو یہ سٹوری مٹے گی۔ ٹائم ہے کیا؟ ٹائم از دا ریٹ آف چینج، چیزوں کے بدلنے کی شرح اور اس کو ڈیٹیکٹ کر پانے کی آپ کی صلاحیت جو ہے نا، یہ ہے ٹائم۔ آپ کا ایز اے فزیکل باڈی جو 99.18% حصہ ہے، اس پر وقت گزر ہی نہیں رہا۔ سپیس پر کوئی وقت نہیں گزر رہا، اس پہ کوئی چینج نہیں آتا۔ اس میں آپ پھول اگا لیں، پورا کر پھینک دیں، آپ کو نظر آ جائے گا، وہ ہٹے گا اسپیس میں، ویسے ہی شدھ پاک کھڑا ہوا ہے۔ وقت سے باہر ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک بات کی ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے خدا۔ تو آپ دوسری سائنس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیس ہے۔ دس از ناٹ آبجیکٹیو تھنگ جو میں کہہ رہا ہوں۔ جسے اب میں اس فرض کریں میں اس کو اسپیس کہہ رہا ہوں، ایک سائنسدان کو بٹھائیں تو وہ اس کو اسپیس کہے گا نہیں، وہ تو کہے گا یہ میٹر کی تیسری حالت ہے۔ صوفی کے لیے ٹائم کیا ہے؟ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک ٹرم استعمال کی، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، از the fun of time۔ وہ جو ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں کس سینس میں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹائم از اونلی دس پل۔ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے عیشا پوڈ کاسٹ کو وزٹ کیجیے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ انسان کی حالت پتہ ہے اس وقت کیسی ہے؟ جیسے کوئی شخص انجان رستے سے گزر رہا ہو اور کہیں سے آ کر تیر اس کے سینے میں چبھ جائے۔ ارد گرد موجود لوگ اس کا تیر کھینچنا چاہیں مگر وہ کہے نہیں، پہلے میرے کچھ اہم سوال ہیں، ان کے جواب مجھے چاہیے، پھر یہ تیر کھینچنا۔ یہ تیر کس نے چلایا؟ کیوں چلایا؟ یہ محض کوئی حادثہ ہے، پروبیبلٹی ہے یا پلاننگ ہے؟ یہ تیر زہر میں ڈوبا ہے یا عام سا تیر ہے؟ سننے میں ایسا ہی لگے گا کہ یہ شخص بڑے سوال اٹھا رہا ہے، فلسفی مزاج بندہ ہے، مگر ارد گرد موجود جمع لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال بعد میں اٹھا لینا، ڈھونڈ لینا سارے جواب، ابھی تو تیری جان پر بنی ہے، تو مرنے والا ہو رہا ہے، اور تو مر گیا تو ہم یہ سارے جواب ڈھونڈ بھی لیں تو جواب دیں گے کسے؟ انسان کو دیکھو، یہ اسی حال میں ہے، یہ دکھ میں ڈوبا ہے، انزائٹی کا شکار ہے، ہر پل ڈپریس ہے۔ اس دکھ کو، اس زندگی کے گزرتے تجربے کو نہیں دیکھ رہا، بس بیٹھا سوال اٹھا رہا ہے، یہ دنیا کس نے بنائی؟ پہلے یہ جان لوں پھر غور کروں گا۔ کیوں بنائی یہ دنیا؟ پہلے اس کا علم ہو جائے تب میری زندگی بدلے گی۔ دنیا کو تخلیق کرنے کی وجہ مل جائے تو پھر میں جیوں گا زندگی، مگر نادان یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ زندگی کا تیر تیرے سینے میں چبھا کھڑا ہے۔ یہاں ایک ہی سوال ہے پوچھنے والا، یہ تیر کیسے نکلے؟ یہ سوال فلسفیوں جیسا گہرا سوال بے شک نہیں ہے، لیکن ایمانداری سے پوچھنا خود سے، کیا یہ اہم سوال نہیں ہے؟ اور گہرے فلسفیانہ سوالات کا مطلب کیا؟ اگر وہ زندگی کے تجربے کو سمجھائیں کم اور الجھائیں زیادہ۔ فلسفیانہ سوال گہرے صحیح، مگر کیا یہ تمہیں زندگی کی حقیقت سمجھا پائے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، پہلے وہ سوال کرو جو سامنے کھڑے ہیں، پہلے بیماریوں کو ٹیکل کرو، صحت تک تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ انسان دکھی ہے، دکھ کی وجہ ہے، بے وجہ دکھ ہو کیسے سکتا ہے؟ ٹانگ میں درد ہے تو وجہ ہوگی، کوئی زخم ہوگا، کوئی پھوڑا ہوگا، اس کی وجہ سے درد ہے۔ سر میں درد ہے، الجھنے ہیں تو وجوہات ہوں گی، اور جیسے ٹانگ کے درد کا علاج ہو سکتا ہے ان وجوہات کو ختم کر کے، اسی طرح تھاٹس کے پیدا کردہ دکھ کا علاج بھی ممکن ہے ان وجوہات کو ختم کر کے جو تھاٹس کو دکھی بنا رہی ہے۔ وجوہات ہیں تو انہیں مٹایا جا سکتا ہے، اور ان وجوہات کے مٹتے ہی تم ایک ایسی حالت کو چھوتے ہو جس کا نام ہے گریس۔
बीमारियों से आज़ादी के बाद जिस मकाम पर तुम खड़े हो उस मकाम का नाम है सेहत। सेहत क्या है? बस बीमारियों से आज़ाद हो जाना। बीमारी हुई उसकी वजह होगी, उसको जाना, उसको मिटाया, और जहां तुम खड़े हो वो सेहत है। इनलाइटनमेंट तुम्हारी वही हालत है। लफ्ज में मत उलझो, लफ्ज बेमानी है, तुम कोई भी मानी इसको दे सकते हो। तुम देखते नहीं लोग सेहत की बात नहीं करते, सेहत के बयान के लिए लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता, बीमारियों की बात होती है। डॉक्टर के पास तुम जाकर सेहत की डेफिनेशन नहीं पूछते, बीमारी का हाल बताते हो। बात उसी की हो सकती है जो तुमने पैदा किया है। सेहत तो तुम्हारी ओरिजिनल हालत है, बीमारियां तुम पैदा करते हो। गौर से देखो जिंदगी को, अपने दुख पर सवाल उठाओ। सारे दुख तुम्हारे हवास के मुहैया करदा डेटा से पैदा हुई ख्वाहिशों से निकल रहे हैं। जो भी ख्वाहिशों में छुपी लज्जत के हसूल को खैर समझकर, अच्छा समझकर जी रहा है, वो दुख की बीमारी का मुब्तला होगा ही होगा। वो खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी वो दुख के सिवा कुछ ना दे सकेगा। कैसे दे सकता है? जो तुम्हारे पास नहीं है वो कैसे दोगे? ये बुनियादी तरीन पॉइंट समझे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तसव्वुफ बस इसी समझ का नाम है, रूहानियत इसी अंडरस्टैंडिंग का नाम है। चीज़ों और लोगों और तुमसे बाहर मौजूद किसी भी चीज़ से सुख की ख्वाहिश तुम्हारा असली दुख है। तुम ये जानते ही नहीं हो कि बाहरी अशिया में कोई सुख नहीं है। तुमने खुद को बस हिप्नोटाइज कर लिया है। तुमने खुद के दिमाग को यकीन दिला दिया है कि शानदार जिंदगी का तजर्बा इन चीज़ों पर मुनहसर है। चीज़ों में ये मानी तुमने खुद डाले हैं, वरना चीज़ों या लोगों में कोई दुख या कोई सुख बेजाते ही छुपा हुआ नहीं है। तुमने कभी कुत्ते को गौर से देखा है? जब वो सूखी खुश्क बेरस हड्डी को चूस रहा होता है तो उसे आखिर कौन सी लज्जत मिल रही होती है? आखिर वो लज्जत कहाँ से उसे मिल रही है? क्या वो लज्जत, वो रस उस सूखी हड्डी में है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब वो सूखी हड्डी को चबाता रहता है तो चबाते चबाते उसके अपने मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो रस उसका अपना ही खून है जिसे वो समझ लेता है कि हड्डी से निकल रहा है। इंसान भी चीज़ों से रस निकालने की कोशिश करता है, दुख उठाता है, मुश्किलें झेलता है, और फिर इस दुख से जब उसका अपना खून बहता है तो वक्ती तौर पर उसे रस मिलता है, लज्जत मिलती है, और वो समझता है कि ये रस उस चीज़ के मिलने से मिला है। नहीं, ये रस उस चीज़ से नहीं, तुमने अपनी ज़िंदगी निचोड़ी है तब ये रस पाया है। याद रखना, जिंदगी में खुशी या मुसर्रत किसी दूसरी चीज से नहीं जुड़ी है। ये मुसर्रत तुम में है। जिस दिन तुमने जान लिया कि मुसर्रत का ये रस किसी चीज में नहीं बल्कि ये रस तुम्हारा था, ये मुसर्रत तुम्हारी फितरी हालत है, उस दिन तुम चीजों से आजाद हो गए। उस दिन जिंदगी में आता है हकीकी इनकलाब। जिंदगी का जौहर, एसेंस ढूंढना है तो खुद में ढूंढना। जब तक ये जौहर बाहर ढूंढते रहोगे, याद रखना तुम भटकोगे। तुमने कभी सोचा कि वो लोग जो नशा करते हैं, क्या वो ये गौर कर पाते हैं कि वो एलिमेंट जो नशे के तौर पर वो ले रहे हैं वो उन्हीं के अंदर ही किसी पॉइंट को जाकर जगाता है जिससे उन्हें लज्जत मिलती है। अल्कोहल तुम्हारे अंदर जाकर किसी पॉइंट के साथ काम करती है तो तुम उसका नशा, उसकी लज्जत महसूस करते हो। तुम में वो पॉइंट ना होता तो कोई भी एलिमेंट अंदर जाकर तुम्हें लज्जत न दे पाता। अगर वो ये हकीकत जान लें तो इस एलिमेंट पर, इस अल्कोहल पर उनका इन्हसार ना रहे, बल्कि वो उस पॉइंट पर काम करें जो लज्जत की वो कैफियत पैदा कर रहा है। मेडिटेशन में जो नशा तख्लीक होता है, यकीन मानिए वो दुनिया के सारे नशों से कहीं गहरा होता है। मेडिटेशन
मराकबा, इबादत कर रहा शख्स क्या कर रहा है? वो उस पॉइंट को बेदार करने में लगा है जिसे नशे किसी नशे के जरिए बेदार करता है। तसव्वुफ अगर कोई चीज है तो बस इतनी ही चीज है कि ये समझ तुम में पैदा हो जाए कि सुख और मुसर्रत किसी बाहरी चीज में छुपा नहीं, बल्कि सुख और मुसर्रत को महसूस करने वाला, पैदा करने वाला टूल मेरे अंदर है। दूसरे से मुंह फेर कर अपनी तरफ मुड़ आने वाले सूफी, सन्यासी, भिक्षु हैं। जब तक जिंदगी की राहत दूसरे से जुड़ी है, वो राहत कभी मुस्तकिल नहीं हो सकेगी। और इसका अंदाजा करना हो तो गौर से देखो उन सारी चीजों को जिनसे कभी तुम्हें राहत मिली थी। बाद में सारे दुख तुम्हारे वहीं से आते हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा दौलतमंद हो जाना, तुम्हारा पसंद की लड़की या लड़के से शादी कर लेना, कभी इन सारी चीजों से तुम्हें बड़ा सुख मिला था। फिर क्या हुआ? तुम्हारे सारे दुख यहीं से ही आने लगे, मसले उन्हीं से ही निकलने लगे। जब तक सुख किसी चीज में देखते रहोगे, भटकते रहोगे, क्योंकि सुख के लिए भी तुम किसी चीज पर मुनहसिर हो। कल वो चीज उस तरीके से डील नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, वो शख्स उस तरीके से पेश नहीं आएगा, तो वही सुख देने वाली चीज या बंदा ही तुम्हें दुख देगा। हकीकी समझ है ये जान लेना कि ये मैं था जिसने इस चीज में रस डाला था, इस चीज का अपना कोई रस न था। ये मैं था जिसने इस चीज में सुख डाला था, इस चीज में अपना कोई सुख न था। और जिस दिन ये समझ तुम में पैदा हुई, जिंदगी बदल गई। अब तुम खुद मुनहसिर हो गए, अब तुम अपनी खुशी, अपने दुख दोनों के मालिक हो गए। अब तुम्हारा इख्तियार है कि जिस फीलिंग को जीना चाहते हो उसको जी लो। अब तुम अपने अंदर उतर गए, अब तुम्हें अपने जिंदापन से जुड़ने का मौका मिला। अब बाहर और बाहर की सारी चीजें तुम्हें छूने की सलाहियत खो बैठी। याद रखना, दुनिया में बस दो ही किस्म के सफर होते हैं, बाहर का सफर, अंदर का सफर। इसके अलावा और कोई सफर है ही नहीं। लोगों की अक्सरियत हवास और माइंड और अना के ज़ेरे असर बाहरी सफर पर निकलती है। ये वो लोग हैं जिन्हें हड्डी में रस नजर आता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो अना के इस ख्वाब से जाग जाते हैं। वो जान पाते हैं कि हड्डी में रस हड्डी का नहीं, मेरा है। इंसान जब बाहरी चीज में लज्जत देखता है तो उसके हवास बेकाबू होते जाते हैं। हल में मजीद की ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। देखते नहीं हो, पेट भर जाता है मगर आंख नहीं भरती। रोजगार मिल जाता है मगर दौलत की हवस नहीं मिटती। चीजों से इतना घर भर लेते हो कि खुद तुम्हारी उसमें जगह नहीं रह पाती, मगर चीजों से घर को भरने की चाह खत्म नहीं होती। ये वो हवास हैं जो बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि इनके मुहैया करदा डेटे को अहमियत मिल रही है। जहन ख्वाहिशों को बुनने में एक्सपर्ट हो गया है। लेकिन देखते हो ना कि पेट भरने के बाद भी खाना जारी रखोगे तो वो तकलीफ पैदा करेगा। ज़रूरतों से परे जाकर चीज़ें जमा करोगे तो हवस और लालच के वायरस चिमटेंगे जो ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं कि इंसान की अज़ियत बढ़ती ही जाती है। बहुत ज़्यादा भागने और पैसे और चीज़ें जमा करने से अंदर एक किस्म का खालीपन बढ़ जाता है जो किसी भी चीज़ से भर नहीं पाता। लेकिन इंसान अपनी मौत तक, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस दौड़ से खुद को रोक नहीं पाता। बाहर की तरफ सफ़र का ये हतमी नतीजा है। और जो अंदर की तरफ सफ़र करते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं? वो कहते हैं दुख नाम है कि सुख को वहां ढूंढा जहां वो नहीं था। रेत के सहरा में पानी के चश्मे नजर तो आते हैं, होते नहीं हैं। जो अंदर का सफर चुनता है वो जल्द या बदेर ये जान लेता है कि उदासी का बस एक ही मतलब है, जो ना हो सका उसकी तमन्ना करना। बातिन का मुसाफिर जान जाता है कि मैं हूं जो बाहरी चीजों में खुशी डाल रहा हूं, ये मैं हूं जो चीजों के ना मिलने में दुख डाल रहा हूं।
जब सुख और दुख डालना मेरे बस में है तो आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी के प्याले में दुख को भरूं। जैसे ही ये समझ पैदा होती है तो जिंदगी को उसका दुरुस्त आहंग मिल जाता है, जिंदगी में ग्रेस आ जाती है।